Hello students, once again I Pramod sir welcomes you all in 9th standard maths period. So students, in first lesson number 16 we have seen up to exercise 1.2. So students, now we are going to start exercise 1.3. So students, the first question is write the following in decimal form. So students, you can see decimal form में लिखना है and say what kind of decimal expression each has. कौन सा kind का, कौन से प्रकार का decimal expression आता है वो भी हमें लिखना है. So students, in first answer let us see 36 upon 100. It's very easy. So students, in the denominator 100 is there. So 120, that means 2 digits को छोड़ के हमें decimal point देना पड़ेगा. So the answer will be 0.36. So students, now you can see 0.36 के सामने 0 कितने भी रह सकते हैं, मगर ये ऑलरेडी टर्मिनेटेड है, रुक गया है वहां पर, राइट. 0 तो रहेंगे मगर नहीं, यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है, रुक गया है. सो वी कैन राइट द आंसर इन दिस वे. इट इज इन टर्मिनेटिंग फॉर्म. कौन से फॉर्म में है? टर्मिनेटिंग फॉर्म. नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड वन, 4 integer 1 upon 8. So we are going to convert this mixed fraction into proper fraction. Improper fraction. It will be 8 4s are 32. 32 plus 1 33. 33 upon 8. So हमने क्या किया, इस mixed fraction को improper fraction में लेकर आए. Now students, 33 upon 8. Very easily we can solve this. So let us start. 33 divided by 8. So in long division method, what will we get? 8 4s are 32. Remainder 1. Now we can give one decimal point. Then we can take 1 0. 8 1s are 8. 2 0. 8 2s are 16, 4, 0, 8 5s are 40. So students, once again the remainder is 0. That means the long division terminates here. So what can we write? Therefore, इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो क्या आया है? 4.125. So students, 4.125 ये टर्मिनेटिंग है. So we should write here it is in terminating form. It is in terminating form. Now students, the fifth question here. The question is 2 upon 11. Now students, हमको ये और एक बार लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा. So 2 divided by 11. So students, 11 zeros are 0. 2 as it is. Now we can take decimal point. So 0 will be there. 11 ones are 11. 9 will remain. We can take another 0. 11 8s are 11. 11 8s are 88. So students, 2 will remain here, right? So once again we can take 0. 11 ones are 11, right? So once again 9 will be here. Once again 11 8s are 88.
So students, we come to know up till now that 1818 will going on because it is not 0. Remainder is not 0. So it will going on. So we see that 2 divided by 11 जो है स्टूडेंट 0.181818 ये ऐसा आते ही रहेगा. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग है मगर ये रिपीटिंग है. 1818 ही आ रहा है, यानी रिकरिंग भी लिख सकते हो आप या फिर रिपीटिंग. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर ऑफ 2/11 इज 0.1818 एंड सो ऑन. 3 डॉट्स हमको देना चाहिए इक्वल्स टू 0.18 और 18 को अगर हम ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाते हैं तो 1818 विल बी रिकर देयर, यू नो इट. सो स्टूडेंट, द फाइनल आंसर देयरफॉर it is in non-terminating repeating form. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में है, ऐसा हम लिख सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, द सिक्स्थ क्वेश्चन 329 upon 400 is there. So students, for such questions what should we do? 400 है स्टूडेंट्स, तो we need not 400 से हमको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा. 4 इंटू अगर 100 लिखेंगे तो we can go with 4. 329 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 4 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो व्हाट विल हैपन? 4 8s are 32, 0 0 now 9, 4 2s are 8, 1 आया, no number is there, so we can take decimal point and we can take 1 0. 4 2s are 8. Once again 2 will be there, right? So once again we can take 0 and 4 5 are 20. Now the remainder is 0. So 329 divided by 4 का ये रिजल्ट है स्टूडेंट्स. 329 by 4. So 329 by 4 की जगह हम लिख सकते हैं 82.25 डिवाइडेड बाय वंस अगेन 100 तो रहेगा क्योंकि ये 400 का हमने 4 into 100 किया था. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो है 82.25 डिवाइडेड बाय 100 है. डिवाइडेड बाय 100 है तो ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट इधर आ जाएगा. यू नो ऑल सच कंसेप्ट. 2 0 है तो ये लेफ्ट में आ जाएगा. सो कितना आंसर मिलेगा हमको? 329 अपॉन 400 will be equals to, ये 2 डिजिट इधर आ जाएगा यानी 0.8225. So students, it will become 0.8225. Of course, remainder तो 0 है, that means it is in terminating form. So students, we can write here that it is in terminating form. It is in terminating form, यानी ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, ऐसा हम लिख सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन. I have taken some questions here, only 4, and the remaining one that like second, fourth, you have to solve. Okay. Now students, second question. So the second question is, you know that 1/7 equals to 0.142857 रिकरिंग, यानी इतने डिजिट रिकर होते हैं अगर हम 1 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? 7 करते हैं. तो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये सभी पूछे गए हैं. सो स्टूडेंट्स, ये सभी के प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं. क्या प्रेडिक्ट करना यानी भाकित करना.
यानी विदाउट, उन्होंने ये बोला है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी ऐसे लॉन्ग डिवीजन ना करते हुए कैन वी प्रेडिक्ट, कैन वी राइट डायरेक्टली? इफ सो, द क्वेश्चन इज इफ सो हाउ, तो आप कैसा करोगे? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेक कि इसका आंसर जो है ये 0.142857 कैसे आया है। अगर हम इसको अगर देखेंगे तो वेरी इजीली वी कैन कंक्लूड दीज आंसर्स आल्सो। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी 1/7. So 7 zeros are 0, 1 remainder. Now decimal point 1 0, 7 ones are 7, so 3 will be remainder. Once again a 0, 7 fours are 28, 2 will remain. Once again 0, 7 twos are 14, 6 will remainder. 60 becomes now. So 7 eights are 56. So 4 will remain here. So once again 0. 7 fives are 35. So 5 will be there. Once again 0. 7 sevens are 49. So 1 will remain. So you can see 1 पहले जहां से हमने शुरू किया था वही आ गया. That means ये डिजिट 7 तक रिकर हो रहा है. इसके बाद में और क्या आएगा? 7 ones are like that. So students, we have seen that 1/7 का जो आंसर है कि 0.142857 और 2857, ये इतने डिजिट्स रिकर हो रहे हैं जैसे कि वैसे आने वाले हैं। यहां पर स्टूडेंट्स हमको पूछा गया कि 2/7 कैसे आएगा, राइट? फॉर 2/7 स्टूडेंट्स, हम पूरा डिवीजन तो नहीं करेंगे। 2/7 अगर हम करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, तो आपको ध्यान में आएगा कि ये 2 रिमाइंडर था, तो ये ऐसी पोजीशन आ गई है। ये पोजीशन यू कैन सी हियर। तो ये पोजीशन में क्या किया था हमने? 7 2s are 14 लिखा था। ये सेम पोजीशन है, राइट? तो ये 2 आया यहां पर। यहां पर क्या है स्टूडेंट्स? 2 2/7 में। फॉर 2/7 इज इक्वल टू क्या लिख सकेंगे? ये 2 से जाना पड़ेगा आगे, 0.2857। इसके बाद में और क्या आएगा मालूम है? ये 7 की पोजीशन थी, यहां पर अगर 0 लिखते हैं तो और 7 1s are 7 से चालू हो जाएगा। यानी और कौन से डिजिट्स आएंगे स्टूडेंट? ये 1 और 4। सो 1/4। तो यहां पर हमने 2/7 को छुड़ाया है स्टूडेंट्स, राइट? 2/7 को, मगर यहां पे रीजन हमको लिखना है। हियर या फिर एज लिख सकते हैं, हियर नहीं, एज फॉर द रिमाइंडर 2 we observe the digits obtained in 1/7। 1/7 में जो डिजिट्स हमको मिल रहे हैं उसी तरह से हमको यहाँ पर भी लिखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, बाकी के जो है 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के लिए वो भी हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी कैन राइट हियर सिमिलरली, यानी अभी 2/7 हो गया, ये 3/7 के लिए भी हम लिख सकते हैं। लेटर ऑन 4/7 के लिए भी लिख सकते हैं। लेट अस ट्राई फॉर 3/7। सो स्टूडेंट्स, 3/7 है यानी 30 हो गए, वो 0 पॉइंट के बाद में 3 यहाँ पर है, देखो स्टूडेंट्स। तो ये 7 4s are 28, यानी ये 4 के बाद में जो डिजिट आ रहे हैं वो सेम आएंगे। सो 3/7 के लिए हम लिख सकते हैं 0.142857।
42857 और उसके बाद में 1. इट्स वेरी इजी नाउ. 4/7 के लिए सिमिलरली 40 हो जाएगा स्टूडेंट्स. यू कैन सी हियर 40 इज देयर. सो 7 5 are 35. सो 5 7 से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स. 5 और बाद में 7 और बाद में कौन से डिजिट्स आएंगे 5 7 के बाद में 1428. 1428. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी लेटर ऑन हम लिखेंगे 5/7 के लिए यानी 50. तो 50 के लिए तो 7 7 49 लिखे थे तो 7 से स्टार्ट होगा. सो इट विल बी 0.7 और बाद में 14285. 14285 7 से लेकर टोटल डिजिट्स क्या होंगे रिकर. और लास्ट का है स्टूडेंट्स क्या है 6/7. Let me check whether it is recording or not. Okay, 6/7. So for 6/7 students 60. So you can see here 7 8s are 56 हमने लिखा. तो 8 के सामने जो भी आएंगे वो हमको लिखने पड़ेंगे. So it will be 0.857 142. So in this way we can predict. So students, now for the last question, third question here, let us see. The question is express the following in the form P by Q where P and Q are integers. जहां पर P और Q क्या है integers है and Q is not equals to 0. First question is 0.6 dash, second is 0.47 recurring and third one is 0.001. So let us try for the first one. I am going to write the answer for the first one. So students, इसको यानी ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है रिपीटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर P/Q के फॉर्म में लाना है. ओके, सो लेट सबसे पहले जो है लेट x इक्वल्स टू 0.6 रिकरिंग. हमने सबसे पहले उसको x ले लिया. ओके, सो स्टूडेंट्स कितने डिजिट रिकर हो रहे हैं इसके बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए. तो हाउ मेनी डिजिट्स आर रिकरिंग? ओनली 1. सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ये 10 into x हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया. या फिर you can write a sentence like this also that multiplying both sides by 10. We can write multiplying both sides by 10 यानी दोनों साइड को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स? 10 से. सो स्टूडेंट्स 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 10x इक्वल्स टू. सो स्टूडेंट्स 10x इक्वल्स टू हमको क्या मिलता है देखते हैं. ये 0.66666 ऐसा इनफाइनाइट है. इनटू 10 अगर हम करते हैं तो वेरी बेसिकली हमको मालूम है कि डेसिमल पॉइंट राइट साइड में एक स्पॉट जाता है. तो ये डेसिमल पॉइंट यहां पर आएगा. तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन 6.6666 मींस व्हाट? ऐसा अगर हमको मिलता है 6666 इसका मतलब होता है 6.6. 6 को हम रिकरिंग दिखा सकते हैं. सो इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स. नाउ वी हैव टू इक्वेशंस. x की वैल्यू वाला एक और दूसरा ये 10x की वैल्यू वाला. 10x की क्यों? Because only one digit was recurring, right? And that's why we multiply both sides by 10. Now students, ये 10x में से x को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है 6.6 रिकरिंग माइनस 0.6 रिकरिंग एंड द रीजन इज 2 minus 1. हमने क्या किया? दो में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो 10x minus x तो इट विल बिकम 9x
10 माइनस 1 9 हो गए, और ये 6.6666 और माइनस 0.6666 ऐसा रिकरिंग जो है, इसमें स्टूडेंट्स ये डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने भी है वो पूरे आ रहे जीरो, पूरे जीरो बन जाएंगे वो, राइट। और इधर 6 माइनस 0 ये आएगा 6, ये कितना आएगा स्टूडेंट 6 आएगा। सो अल्टीमेटली द आंसर फाइनल 6.00 है, यानी 6 है। सो स्टूडेंट x इक्वल्स टू 6/9, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। सो x की वैल्यू आई 2/3। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज x? x क्या है? x क्या है जो हमने क्वेश्चन था वही लिया था 0.6 बार, यानी x की जगह हम क्या लिखेंगे 0.6 बार। का आंसर आया है 2/3, वेयर p 2 है और q है 3, यानी q is not equals to 0, p है 2 और q है 3। So students, we have ultimately seen that the non-terminating decimal form can be written in the form p/q, where p and q are integers, right? Now the second question, students, let us try for that. We are going to start our second answer. यहाँ पर स्टूडेंट्स लेट सेम पहली स्टेप रहेगी, x इक्वल्स टू 0.477 रिकरिंग है स्टूडेंट्स। क्या रिकरिंग है? 7 रिकरिंग है। सो यहां पर थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 जीरो है, तो वी कैन गो विथ 100 आल्सो, बट वी कैन गो विथ 1 because I told you in earlier solution that how many digits are recurring. So here only 1 digit is recurring. देखो स्टूडेंट यहाँ पर 0.47 और 47 रिकरिंग नहीं है, इट इज नॉट द क्वेश्चन। एक बात ये समझ लीजिए आप अच्छे से, क्वेश्चन क्या है, सिर्फ 0.47 यानी 7 रिकरिंग, यानी 777 ही है, 4747 नहीं आने वाला है। तो स्टूडेंट्स 1 digit is recurring only, so we can go with 10. So similarly you can solve here. Let us give this first one, therefore you can write 10x equals to 10 से multiply करेंगे, if only 1 digit is recurring we can go with 10, no matter, right? So यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 4 7 है, 777 into 10 है, ये 3 डॉट्स देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग है, right? So students, what will we get here? ये डेसिमल पॉइंट 1 सेकेंड इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 4.777777, right? Like that. So we can write here 4.7 recurring, 777 आ रहा है, ये डेसिमल पॉइंट राइट में गया 10 की वजह से। Now students, let us give second. Once again, what will we do? Second minus first. Second में से first को माइनस करेंगे, 10x माइनस ये x हो जाएगा इक्वल्स टू 4.7 रिकरिंग माइनस 0.477 रिकरिंग। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना है रिगार्डिंग सब्ट्रैक्शन। सो 10x माइनस x विल बी 9x डेफिनेटली, बट 4.7 रिकरिंग है तो 777 ऐसा थोड़ा सा लिख लो आप, अगर नहीं आता है डायरेक्टली तो। माइनस 0.47 है तो माइनस 0.4777 ऐसा थोड़ा सा लिख लो। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स ये सेकंड डिजिट से तो 0 0 आ रहा है, मगर डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 डिजिट 7 माइनस 4 अगर करेंगे तो 3 आएगा, और ये बिफोर डेसिमल पॉइंट 4 माइनस 0 है 4, दैट मींस 4.300000। सो स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, sorry for the instruction students, you know that video was not recording from here, so once again I am going to explain you 10x minus x, so it will be 9x equals to, and I told you that 4.7 recurring means 777 and minus 0.47777 recurring. So students, after second digit you can give 0, 7 minus 7 0 0 0,
and first digit 7 minus 4 3. So and before decimal point 4 minus 0 means 4. So it will become 4.3. 4.3. So students, the value of x now. Let us see. 4.3 divided by 9. तो डेसिमल पॉइंट के बाद में एक डिजिट फिर भी है, इट इज नॉट एन इंटीजर. सो हम 10 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं दैट इज 1, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो 4.3 into 10 यानी 43 और 10 into 9 यानी 90. So students, instead of x now we are going to write 0.47 recurring. So 0.47 7 recurring is equal to 43 upon 90. Here P and Q's value, students, very easy. P equals to 43 and Q equals to 90. So students, it's all for today. Third question we are not capable to solve here. The third one 0.001 recurring, and 3 digit अगर recur हो रहा है तो you can go with 1000. We know it. Still, I will take this example in our next class. Okay, students. See you. Bye bye.